Hello everyone, welcome to Exam Centric. This is Aditi and I hope you all are doing really well. The topic for this session will be sentence improvement. So sentence improvement, as you know, is an important topic. यहाँ पे आपके grammar के rules check होंगे. Vocabulary is also very important here. And apart from these, your thinking skills. All these areas are very important when it comes to sentence improvement, right? So grammatical rules, you really need to be well versed. Vocabulary, thinking skills. Thinking skills will be how you comprehend the meaning of a sentence. आप एक sentence का meaning समझ पाते हैं नहीं समझ पाते, वहाँ पे कौन सा rule कब लगेगा, ये समझ पाते हैं नहीं समझ पाते, right? तो ये as and when we solve the questions, we'll be discussing these focus areas, right? All right, let's start with the questions now. Okay, so which of the following phrases given below, each sentence should replace the phrase printed in bold letters to make the sentence grammatically and contextually correct. Okay, so हमारे पास phrases हैं, आपको bold phrase को replace करना है, right? चलिए, first question देखेंगे. The World Cup was her final attempt for a tryout with the national squad. Has acquired considerable strength this winter. Okay, so national squad ने क्या किया है? उसको क्या मिला है? Considerable strength किसको मिली है? National squad को मिली है, right? The World Cup was her final attempt for a tryout with the national squad. Dash has acquired considerable strength this winter. Okay, अगर ये इसके लिए यूज हुआ है तो आपको यहाँ पे एक relative pronoun लगाना चाहिए. Relative pronoun क्या बात करता है? जो पिछला noun है उसके बारे में बात करता है. यहाँ पे बोला है acquired considerable strength. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? कोई relative pronoun होना चाहिए, right? Relative pronoun होना चाहिए. Relative pronoun कौन सा आएगा यहाँ पे? Which is a relative pronoun. So यहाँ ये गलत है, इसमें इन दोनों में कोई relative pronouns नहीं है, तो ये दोनों गलत है options, right? So which has acquired considerable. So option is A. Only one is correct, right? The World Cup was the final attempt for a tryout with the national squad, which has acquired considerable strength this winter. Looks good. Next question. Read it and tell me the answer. Where there are two proximate causes of loss, जब भी किसी loss के दो proximate causes होते हैं, दो main causes होते हैं. Proximate क्या होता है इंश्योरेंस में? कोई भी अगर loss हुआ है तो proximate cause क्या है, main cause क्या है जिसकी वजह से वो loss हुआ है. अगर वो loss cover में है, इंश्योरेंस के cover में है, तो इंश्योरर्स को पैसा देना पड़ता है, राइट? चलो, when there are two proximate causes of loss, none of which is subject to an exclusion, but only one of which is expressly insured, insurers shall be liable. अगर insurers liable है, if insurers are liable for the loss, that means कि वो causes exclude नहीं होने चाहिए, राइट? वो cover में आने चाहिए. अगर वो exclude हो गए तो उनको loss के लिए pay नहीं करना पड़ेगा. लेकिन अगर उनको लॉस के लिए पेमेंट देनी पड़ रही है, अगर वो लायबल है लॉस के, उनको पे करना पड़ेगा, इसका मतलब दोनों ही एक्सक्लूड नहीं होने चाहिए कवर में से, राइट? पॉलिसी में से. तो अगर दोनों ही कवर नहीं होने चाहिए, दोनों ही एक्सक्लूड नहीं होने चाहिए, दोनों ही एक्सक्लूजन में नहीं आने चाहिए, दो के लिए हम नन नहीं यूज करते हैं. दो के लिए हम क्या यूज करते हैं? नीदर, राइट? सो व्हेन देयर आर टू प्रॉक्सिमेट कॉजेस ऑफ लॉस, neither of which, right? So answer would be B. Only third is correct. Clear? Okay. Let's move on to the next question. Here you go. Doughty acknowledged his mistakes when he resigned the chairmanship. Doughty ने अपनी गलती को माना. When he resigned the chairmanship, उसने chairmanship से resign कर दिया. But said with a track record to prove it. Okay, दोनों तरफ आपके कॉमा लगे हैं. ये क्या है? नॉन रिस्ट्रिक्टिव फ्रेज है. with a
ट्रैक रिकॉर्ड टू प्रूव इट मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। Doughty acknowledged his mistakes when he resigned the chairmanship, but said, और ये ट्रैक रिकॉर्ड था, ये जो बात उसने बोली है उसको प्रूव करने के लिए उसके पास ट्रैक रिकॉर्ड था। क्या ट्रैक रिकॉर्ड था, या उसने क्या बोला, said that he had always tried in doing his best for the football team which had so colored his youth. Okay, so which has that he had always tried in doing his best. He had always tried कुछ करने के लिए, right? जब कुछ करने के लिए अभी हुआ नहीं है, ठीक है, उसने ट्राई किया है कोई काम करने के लिए, तो ट्राई के साथ हम इन्फिनेटिव फॉर्म यूज करते हैं। इन्फिनेटिव फॉर्म का मतलब क्या होता है, 2 + V1, दैट इज द इन्फिनेटिव फॉर्म, राइट। ट्राइड टू डू हिज बेस्ट या हर बेस्ट। ओके, सो ये तो गलत हो गया, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। ओके, यहाँ पे लिखा है हिज, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 1, हर नहीं, क्योंकि यहाँ पे कई जगह पे रेफरेंस हिज से लिखा है, राइट, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। सो ऑप्शन वुड बी only 1 is correct. Simple. Let's attempt this one now. Come on, read it. केमिस्ट्री का क्वेश्चन। ओके, ध्यान देंगे इंग्लिश के पार्ट पे, जहां पे एरर हो सकता है या एरर है, ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए। H2, हीलियम, O2, ये सब आप फटाफट स्किप कर सकते हैं। द परमिएबिलिटी कोफिशिएंट्स, तो सब्जेक्ट हो गया ये, परमिएबिलिटी कोफिशिएंट्स, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट है। डिक्रीज्ड विद समथिंग, सो कोई एक चीज है, डिक्रीज हो रही है। मॉलिक्यूलर डायमीटर्स ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, एक्सेप्टिंग ऑफ हीलियम। ओके, सो इन सारे एलिमेंट्स के लिए लिखा है द परमिएबिलिटी कोफिशिएंट्स इनकी डिक्रीज होती है विद their kinetic molecular diameters of gas molecules excepting of helium, ठीक है, मतलब हीलियम इसका क्या है, एक एक्सेप्शन है, राइट। अब आप जब एक्सेप्शन रेज करते हैं तो क्या कहते हैं, विद एन एक्सेप्शन ऑफ, ठीक है। एक्सेप्टिंग ऑफ तो नहीं कहते, ये तो नहीं बोलते ऑल स्टूडेंट्स एक्सेप्टिंग ऑफ मी, नहीं, आप क्या कहते हैं, ऑल स्टूडेंट्स एक्सेप्ट मी, विद एन एक्सेप्शन ऑफ मी और एक्सेप्ट फॉर मी, ये तीनों ही आपके फॉर्मेट्स सही होते हैं। यू कैन से ऑल स्टूडेंट्स एक्सेप्ट मी, एक्सेप्ट फॉर मी और विद एन एक्सेप्शन ऑफ मी, राइट। सो ऑप्शन यहाँ पे ये तीनों ही सही रहेंगे। तीनों फॉर्म्स को आप नोट कर लीजिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों ही फॉर्मेट्स आपके सही होते हैं। सो 1 2 3 ऑल ऑफ देम, ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। सब पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। इजी क्वेश्चन है, रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर है क्वेश्चन। जहां पे भी आपका बोल्ड फ्रेज है वो रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका सबसे पहले ध्यान रिलेटिव प्रोनाउन के रूल्स पे जाना चाहिए। चलिए, she surrounds herself with children and shelves, boxes and closets full of items. Okay, वो अपने आप को किससे सराउंड करती है, क्या रखती है अपने आसपास, वो किनको रखती है, चिल्ड्रन को, शेल्व्स को, बॉक्सेस को एंड क्लोसेट्स, फुल ऑफ आइटम्स, जो आइटम रिमाइंड करते हैं। ओके, सो ये एक रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, राइट। ये आइटम रिमाइंड करते हैं, या ये सारी चीजें रिमाइंड करती हैं। अगर ये सारी चीजें रिमाइंड करती है तो सबसे पहले तो रिमाइंड्स नहीं आएगा, क्या आएगा, रिमाइंड। तो इनमें से ओके, तीनों में रिमाइंड है, तो ये तो ऑप्शन ई नहीं होगा, ठीक है। दैट रिमाइंड हर, ओके, अगर ये सारी ही चीजें उनको उसको हैप्पियर टाइम्स या अच्छे टाइम्स के बारे में याद दिलाती है, तो ये रिस्ट्रिक्टिव है। रिस्ट्रिक्टिव का मतलब कोई भी आइटम्स नहीं। जब कोई भी आइटम, अगर आप इसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरह बोलते हैं कि रिमाइंड कराती हैं हैप्पियर टाइम्स के बारे में, सबको रिमाइंड कराती है, पर सबको नहीं कराती, ये चीजें उसको रिमाइंड कराती है। जहां पे ये रिस्ट्रिक्शन आती है, रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज ये माना जाता है, राइट। ये जो अगला क्लॉज है ये एक रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, ठीक है। इसको हम प्रोनाउंस में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, कहाँ आपको दैट लगाना है, कहाँ पे विच लगाना होता है। बट क्योंकि यहाँ पे ये सारी के सारे जो चीजें हैं
चिल्ड्रन, शेल्व्स, बॉक्सेस, क्लॉसेट्स फुल ऑफ आइटम्स, ये सारी चीज़ें रिमाइंड कराती हैं, ये इसके लिए स्पेसिफिकली लगा गया है, राइट। अगर जहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि ये चीज़ सिर्फ इन्हीं के लिए लगा है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन या उसकी डेफिनेशन नहीं है, ये कुछ चूज कर रही है उन चीज़ों को, या स्पेसिफिकली उन आइटम्स के बारे में बात कर रही है जो आगे वाला क्लॉज इसके लिए बात कर रहा है, राइट। क्या रिमाइंड करता है? ये सारी चीज़ें रिमाइंड कराती हैं, राइट। तो आप दैट ही लगाते हैं, राइट। एंड रिमाइंड तो नहीं होगा, हमें रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए। दैट रिमाइंड या विच रिमाइंड, ऑप्शन वुड बी वन, ओनली वन इज करेक्ट, राइट। चलो नेक्स्ट। Each of the questions given below, two parts are given in bold, which are then followed by 4 possible alternatives. You have to choose the option which fits in the sentence, making it grammatically and contextually correct. If all the 4 alternatives are incorrect, choose option E. Okay. So हमारे पास अब एक नहीं है bold में phrase, 2 phrases हैं bold में हैं, आपको दोनों को replace करना है from the options given below. Let's start with it. All right. Question number 6. Please read it carefully. There are 2 phrases in bold. You have to replace them with an option. Each option has 2 phrases that can replace the bold ones above. Come on. Read it carefully and tell me the answer. Come on, everyone will read it. ठीक। A statement from British Cycling. Statement क्या है? British Cycling ने क्या बोला है? That she had suffered a minor injury which will compromise her. Okay. उन्होंने क्या बोला है? Statement ने बोला है, क्या बोला है? ये additional information, ठीक है, इसको आप skim कर सकते हैं additional information को। तो statement ने क्या बोला है? That she suffered a minor injury. Okay. अभी आप ये देख पा रहे हैं कि ये क्या है? Direct speech है या indirect speech है? ये क्या है? Indirect speech है। ये क्या है? Indirect speech। इनडायरेक्ट स्पीच है तो हम यहाँ पे विल नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम यहाँ पे? वुड, राइट। सो ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं, ओके। अ माइनर इंजरी एंड वुड कॉम्प्रोमाइज, अ माइनर इंजरी विच वुड कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज क्या करेगी? कौन करेगा? ये इंजरी कॉम्प्रोमाइज कर रही है, राइट। अगर ये इंजरी कॉम्प्रोमाइज कर रही है तो हमको यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है, आगे वाला जो क्लॉज है वो पिछले वाले के बारे में बात कर रहा है, राइट। नाउन है पीछे और नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, आगे रिलेट करना है, नाउन को रिप्लेस करना है, तो रिलेटिव प्रोनाउन है। अ माइनर इंजरी जो कॉम्प्रोमाइज करेगी, राइट। अ माइनर इंजरी विच वुड कॉम्प्रोमाइज। आगे भी पढ़ लेते हैं। एंड सो शी वॉज बीइंग रेस्टेड, सो शी हैज बीन रेस्टेड, ओके। जहां पे भी आपको कोई स्टेटमेंट आती है कि वो मे बी उसको इंजरी हो गई है तो उसको रेस्ट कराया जा रहा है, या फिर वो एक नया पर्सन है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको ये नया मौका दिया जा रहा है किसी प्लेयर को, राइट। तो जहां पे भी आप न्यूज़ बताते हैं तो आप इस टोन में पैसिव वॉइस में बात करते हैं, उसको रेस्ट दिया गया है, उसे मौका दिया गया है, उसे कैप्टनशिप दी गई है, राइट। सो दी गई है पैसिव वॉइस में आना चाहिए, एंड सो शी वॉज बीइंग रेस्टेड, ठीक है, वो उसको रेस्ट कराया जा रहा है क्योंकि उसे इंजरी हुई है, करेक्ट, इजी। सो यू कैन सी कैसे रूल्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे हम। मोस्टली रिलेटिव प्रोनाउंस के यहाँ पे क्वेश्चंस हम देख रहे हैं, और एंड वर्ब के फॉर्म्स के, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, एंड साथ ही साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स। सो दीज आर इंपॉर्टेंट एरियाज। प्रोनाउंस हो गए, टेंसेस हो गए, आपके वर्ब की फॉर्म्स हो गई, प्रेपोजिशंस हो गए, ये सब आपको ध्यान रखना होता है जब आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फोकस एरियाज फॉर सच क्वेश्चंस। चलो next, this one. Read it and tell me the answer. Read it, everyone. Eyes on the question. Read it. Go through it. Okay, so internet क्या है? बिगेस्ट गिफ्ट है मैनकाइंड को, राइट। बिगेस्ट गिफ्ट है मैनकाइंड को। सो बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ मैनकाइंड तो नहीं होता है, राइट। तो ये तो ऑप्शन कैंसिल। द बिगेस्ट गिफ्ट टू मैनकाइंड, ये भी ठीक है। फॉर भी होता है, गिफ्ट के साथ लगता है। आई बॉट दिस गिफ्ट फॉर यू, दिस इज माई गिफ्ट टू यू, आई बॉट दिस गिफ्ट फॉर यू, राइट। सो both of these prepositions, they apply well here.
द बिगेस्ट गिफ्ट टू मैनकाइंड, ऑलराइट। तो ये भी ठीक है क्वेश्चन में जो गिवन है, बाकी 3 ऑप्शंस भी हमारे पास अभी बच रहे हैं। एंड वी नीड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम, हमें इसको प्रोटेक्ट करना है, हमें किसी लिए प्रोटेक्ट करना है, किसी से प्रोटेक्ट करना है। आगे देखते हैं आगे का क्या है। ओवर रीचिंग गवर्नमेंट्स, ओवर रीचिंग का मतलब होता है जहाँ पे आप जरूरत से ज्यादा कोई चीज करते हैं, राइट, ओवर रीचिंग, राइट। लेकिन यहाँ पे ओवर रीचिंग गवर्नमेंट्स का मतलब, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्पेंड कर रही है, यहाँ पे एक और मीनिंग आता है ओवर रीचिंग का जो यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई होगा, वो है कनिंग, राइट, क्लेवर। एक वर्ड है यहाँ पे एम्बिशियस, ओवर रीचिंग का मतलब वो भी होता है। ओवर रीचिंग का मतलब जहाँ आप जरूरत से ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, वो भी ओवर रीचिंग है। जहाँ पे जरूरत से ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं, या फिर कोई भी चीज जो आपको उतनी जरूरत नहीं है लेकिन आप उससे ज्यादा कर रहे हैं, दैट इज ओवर रीचिंग। लेकिन यहाँ पे ओवर रीचिंग का कॉन्सेप्ट जो इस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, ओवर रीचिंग गवर्नमेंट्स का मतलब दे आर वेरी क्लेवर, बहुत एम्बिशियस है, बहुत पैसा लगाएगी, और वो क्या करना चाहती है, उसे प्रॉफिट मेकिंग चाहती है, राइट। तो ऐसी गवर्नमेंट से और ऐसे ग्रीडी कॉर्पोरेशन से, राइट, कनिंग, क्लेवर, ग्रीडी, ये दोनों पैरेललिज्म में भी हैं, नेगेटिव हैं दोनों, तो एंड से ज्वाइन हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। सो यहाँ पे ओवर रीचिंग का मतलब एम्बिशियस हो गए, क्लेवर हो गया, गवर्नमेंट्स एंड ग्रीडी कॉर्पोरेशन से हमको बचाना है उसको, राइट, वी हैव टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम। तो क्या, तो यहाँ पे ये सही है। बाकी देखिए, वी नीड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बिगेस्ट गिफ्ट, ओके, ये तो पहले ही कैंसिल हो गया है, राइट। प्रोटेक्ट, नीड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इट, नो। सो यहाँ पे क्या है, जो ये गिवन है, नीड टू प्रोटेक्ट इट, इससे बचाना है, तो फ्रॉम बिल्कुल सही लगा हुआ है, देयर इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड, राइट। नीड टू प्रोटेक्ट इट बाय नहीं, उनके जरिए से नहीं बचाना, उनसे बचाना है। नीड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द बिगेस्ट गिफ्ट टू मैनकाइंड, एंड वी नीड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द बिगेस्ट गिफ्ट टू मैनकाइंड, नीड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम, ओके। सो ये जो गिवन है वो आपका सही है, दैट इज वाई वी डोंट नीड टू रिप्लेस इट विद एनीथिंग, आंसर वुड बी ई, नो करेक्शन, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, राइट। इसमें कुछ ना कुछ एरर इंड्यूस होना चाहिए था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, द पीपल ब्रीफ्ड एट द मैटर सेड, ओके, इन लोगों ने कहा, ब्रीफ्ड एट द मैटर, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज, अगर आप समझ पा रहे हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। वो पीपल, अगर ये एडजेक्टिव है तो ईडी तभी आ रहा है, ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज है। वो पीपल जिनको मैटर के बारे में इंफॉर्मेशन थी, जिनको पहले से पता था मैटर के बारे में, वही बात करेंगे, राइट। ये पीपल ब्रीफ दे नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर ब्रीफ दे रहे होते तो ये वर्ब होता है, लेकिन वर्ब आगे लगा हुआ है, इसका मतलब ये वर्ब नहीं है, ये इन लोगों के बारे में एक फ्रेज है, एक इन्हीं लोगों के बारे में आगे बताया गया है, राइट। अब अगर इन्हीं के बारे में बताया गया है, ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो हम इनको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं, राइट। ये पीपल जिनको इन्फॉर्मेशन थी मैटर के बारे में, उन्होंने कहा कि वन ऑफ द न्यू आईफोन्स इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय टाइवानीज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हॉन हाई प्रिसीजन इंडस्ट्री को, ओके। सो कुछ चीज़ों को आपको स्किम करते हुए पढ़ना होता है, अदरवाइज यू विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम व्हाइल रीडिंग द सेंटेंसेस। सो ये पीपल क्या है, जिनको पता था इन्फॉर्मेशन के बारे में, उन्होंने कहा कि वन ऑफ द न्यू आईफोन्स, एक कोई मॉडल कहाँ बन रहा है, टाइवानीज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर बना रही है, जिसने कि एप्पल के प्रीवियस आईफोन्स भी बनाए, विच प्रोड्यूस्ड एप्पल्स प्रीवियस आईफोन्स, राइट। चलिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पे आप देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच है, उसने कहा, लेकिन वन ऑफ द न्यू आईफोन्स बन रहा है, कहाँ बन रहा है, टाइवानीज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर बना रहा है, इस कंपनी में बन रहा है, ये एक न्यूज़ है, राइट। अगर न्यूज़ की बात हो रही है और वो चीज़ आज भी वैलिड है, ऐसा नहीं वो नया आईफोन आ चुका है, राइट, ये लेटेस्ट न्यूज़पेपर से बना है। सो पीपल ने बोला है कि उन पीपल ने बोला है जिनको मैटर के बारे में नॉलेज थी, कि वो एक आईफोन कहाँ बन रहा है, टाइवानीज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर बना रहा है, उस कंपनी में बन रहा है। ये एक न्यूज़ है जो जब बोली गई है, जब बताई गई है, इवन इंडायरेक्ट स्पीच में भी, वो फ़ोन वहाँ पे बन रहे हैं, उस टाइम पे बन चुके नहीं। जब आप न्यूज़ की बात करते हैं और वो चीज़ अभी वैलिड होती है, जब आप रिपोर्टेड स्पीच में बात कर रहे हैं, तो आपको उसका फॉर्म चेंज नहीं करना होता, आपको वर्ब को चेंज नहीं करना होता, राइट। इसको आपको रिप्लेस नहीं करना है, इट विल रिटेन इट्स फॉर्म, ओके। सो द पीपल ब्रीफ्ड एट द मोमेंट सेड, ब्रीफ तो ठीक है, ब्रीफ्ड ऑन द मैटर, ब्रीफ्ड एट द मैटर, ब्रीफ्ड अबाउट द मैटर, ओके। सो ब्रीफिंग द मैटर तो नहीं, वो ब्रीफ कर नहीं रहे थे, राइट, ब्रीफ कर नहीं रहे थे वो लोग, वो ऑलरेडी ब्रीफ थे, ठीक है।
सो ब्रीफ्ड एट द मैटर नहीं होता है, ब्रीफ के साथ क्या होता है, जिन लोगों को ऑलरेडी नॉलेज होती है। सो ब्रीफ के साथ हम एट नहीं यूज करते हैं, ब्रीफ के साथ हम क्या यूज करते हैं, ऑन। सेड वन ऑफ द न्यू आईफोन्स इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, बीइंग नहीं होगा बेटा, क्या होगा, सेड वन ऑफ द न्यू आईफोन्स इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। और जा रहे हैं का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस टेंस है और पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होगा, इज एम आर वॉज वर, यहाँ पे इज है, बीइंग, और पैसिव वॉइस है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म, राइट। सो द पीपल जिनको मैटर के बारे में पता था, they were briefed on the matter, said one of the new iPhones is being manufactured by, मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं Taiwanese contract, इस कंपनी में, राइट। आंसर वुड बी सी, ठीक है। और मैन्युफैक्चर ये लोग कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चर्ड बाय ही होगा, तो ये भी गलत हो गया, राइट। वॉज बीइंग, वॉज नहीं आएगा क्योंकि न्यूज़ की बात है, ये भी नहीं होगा, राइट। तो ऑप्शन क्या बचा आपका, सी। एलिमिनेशन से भी कर लो तो भी हो जाएगा, सीधा रूल्स लगाएंगे तो भी हो जाएगा। ये तो सीधा प्रेपोजिशन का रूल लग रहा है, ब्रीफ्ड ऑन, और आपका प्रेजेंट टेंस में इज है और पैसिव वॉइस है तो बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, राइट। नेक्स्ट, it is not a very encouraging news that states have felt, okay, so have felt short, पेड़ नहीं गिर रहे हैं, ठीक है। फेल्ट क्या होता है, गिराना, काट के गिराना किसी को, दैट्स फेल्ट, ओके। सो यहाँ पे फेल्ट शॉर्ट तो नहीं होगा। इट इज नॉट अ वेरी एनकरेजिंग न्यूज। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, इस पर्टिकुलर फ्रेज की बात करें तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, इट इज नॉट अ वेरी एनकरेजिंग न्यूज, ओके। अ वेरी एनकरेजिंग न्यूज, इस पे फोकस करो। ये अ किसके लिए लगा है, नाउन क्या है यहाँ पे, न्यूज। अब न्यूज काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल नाउन है, इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन, तो साथ में आर्टिकल अ नहीं लगेगा। अ का मतलब होगा एक, ठीक है। अगर एक दो दिन मतलब काउंटेबल नाउन के साथ लगेंगे, राइट, तो अ तो नहीं लगेगा। सो ई गलत, सी गलत, ए गलत, राइट। बी और डी को भी देख लेते हैं। इट इज नॉट वेरी एनकरेजिंग न्यूज, ये ठीक लग रहा है। इट इज नॉट न्यूज दैट एनकरेज, ऐसे नहीं बोलते, राइट, कि न्यूज है जो एनकरेज कर रही है, एनकरेजिंग न्यूज है, राइट। आगे भी देख लेते हैं। दैट स्टेट्स हैव फेल्ड शॉर्ट, ठीक है। द स्टेट्स हैव फेल्ड नहीं, फॉल का यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या होगी, फॉलन। दे हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ द इनॉकुलेशन टारगेट, राइट, दे हैव फॉलन शॉर्ट। इनॉकुलेशन टारगेट की शॉर्टेज नहीं हो गई है, इसका मतलब है जो हमारा टारगेट था हम उसको अचीव नहीं कर पाए हैं। तो कुछ चीज, कोई आपका टारगेट था वो आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या है, दैट पर्सन हैज फॉलन शॉर्ट ऑफ द टारगेट, ठीक है। शॉर्टेज होती है कमी हो जाना, ठीक है, किसी चीज़ की। मैं यहाँ पे अगर मैंने शॉर्टेज बोल दिया इसका मतलब उस टारगेट की कमी हो गई है, नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे टारगेट की कमी हो गई है, वो टारगेट अचीव करने में हमारी कमी रह गई है, राइट। तो हमें क्या करना है, दे हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ द टारगेट, राइट। ऑप्शन वुड बी बी, राइट। नेक्स्ट, eyes on the question everyone, read it and tell me the answer. Everyone will read it, it's the last question of the session, tell me the answer quickly. Okay, journalism is sacred and any effort to malign should seriously be viewed, okay, एक ही यहाँ पे उन्होंने लंबा बोल्ड कर दिया, right। journalism sacred है और any effort to malign, okay, malign is a transitive verb। transitive verbs क्या होते हैं बच्चे, transitive verbs होते हैं जिनके साथ एक ऑब्जेक्ट आता है, उनको एक ऑब्जेक्ट चाहिए आगे, राइट। मैंने देखा, क्या देखा, ठीक है। आई वॉच, यू वॉच्ड व्हाट, यू वॉच्ड अ मूवी, राइट। तो वॉच भी क्या है आपका, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, राइट। तो मेलाइन के साथ भी आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, और वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, जर्नलिज्म सेक्रेड है और कोई भी एफर्ट उसको मेलाइन का मतलब खराब करने की या उसके बारे में गलत बात करने की, ठीक है, उसको डिसरिप्यूट करने की, राइट, डिसरिप्यूट। जर्नलिज्म सेक्रेड है और किसी भी मैलिग्नेशन से, किसी भी कोई भी डिसरिप्यूटिंग एक्ट से हमें उसको बचाना है, राइट। और एनी एफर्ट टू मेलाइन शुड सीरियसली बी व्यूड, ठीक है। अगर कोई
एफर्ट किया गया है उसको जर्नलिज्म को मेलाइन करने का, बुरा बनाने का, तो हमें उसको सीरियसली व्यू करना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, राइट। सो एनी एफर्ट टू मेलाइन इट, किसको मेलाइन कर रहे हैं यहाँ पे, कोई भी एफर्ट जो उसको मेलाइन करने के लिए किया गया है, किसको मेलाइन करने के लिए, जर्नलिज्म को, और जर्नलिज्म क्या है, इट, राइट। सो एनी एफर्ट टू मेलाइन इट, ये मेलाइनिंग तो नहीं होता है, ठीक है। एनी एफर्ट टू मेलाइन, कोई एफर्ट जो किया गया है उसको मेलाइन करने के लिए, राइट। एनी एफर्ट टू मेलाइन इट शुड बी व्यूड सीरियसली। ऑप्शन ए इज करेक्ट, बाकी सारे गलत है। एफर्ट टू ING नहीं आता है आपका यहाँ पे, इंफिनिटिव फॉर्म आएगी एफर्ट के साथ। एनी एफर्ट टू प्लस V1 टू मेलाइन, ठीक है। चलिए आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। I'll keep posting more videos, more sessions with you. Okay. Good luck with all your preparations, and we'll see you again very soon. Thank you.